We have been studying about the components of the yoke. हम जुए के अलग अलग पुर्जों के विषय में सीख रहे थे। ਅਸੀਂ ਜੂਲੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। In order to crucify our flesh, we should take yoke upon ourselves. अपनी शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाने के लिए हमें जुए को अपने कंधे पर रखना, अपने गर्दन के ऊपर रखना है। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਲੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਜੂਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। चढ़ाने के लिए. ਹਾਂਜੀ, ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧੌਣ ਨੂੰ ਜੂਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। Why we carry the yoke? हम जुए को अपने गर्दन के ऊपर क्यों रखकर चलते हैं? ਅਸੀਂ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? In order to crucify or keep the flesh crucified. ताकि अपनी शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाए रखने के लिए, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗੀ ਰੱਖੀਏ। The first, I told you the components of the yoke we find in Matthew chapter 5, 6, 7 and in other scriptures. मैंने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 और बाकी अन्य वचनों में हम जुए के अलग अलग पुर्जों के बारे में सीखते हैं। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਤੇ 5, 6, 7, 8 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੂਲੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। The number one we studied about the straight gate and the narrow way. सबसे पहला पुर्जा हमने सकेत फाटक और सकरम मार्ग के विषय हमने सीखा है। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੀੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭੀੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। And number two we studied about resist not evil. और दूसरा पुर्जा हमने जो देखा है बुराई का सामना नहीं करना है। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। You should love your enemies. अपने दुश्मनों को प्यार करना है। ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। Do good to them that hate you. जो आपसे नफरत करते हैं उनसे भलाई करें। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੋ। Bless them that curse you. जो आपको श्राप देते हैं उन्हें आशीष दें। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ श्राप ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। You allow people to defraud you. और लोगों को आपको लूटने देना है। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। That is the number two portion, number two component. ये जुए का दूसरा पुर्जा है। ਇਹ ਜੂਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਜਾ ਹੈ। And number three is you are the salt of the earth. और तीसरा पुर्जा है तुम जगत की नमक हो। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪੁਰਜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨਮਕ ਹੋ। We are the salt of the earth. आप जगत के नमक हो। ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨਮਕ ਹੋ। Now the next portion, next component is Luke 9:23. अगला पुर्जा है लूका 9 का 23। ਅਗਲਾ ਪੁਰਜਾ ਹੈ ਲੂਕਾ 9 ਦੀ 23। Luke 9:23. लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 23वां वचन। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 23 ਵਚਨ ਐਤ। If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ਉਸਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। Let's pray so that God may give you more grace to understand it. आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको आज रात अपना अनुग्रह दे ताकि आप वचन की गहराई को समझ सकें। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। Father, thank you for this word. पिता तेरे वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Holy Spirit, you are the teacher. पवित्र आत्मा आप हमारे सिखाने वाले हैं। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Teach us. आप हमें सिखाएं। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ। In Jesus' name. यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। Here, the number one word is to deny ourselves. और इधर जो सबसे पहला विषय है अपने आपे से इनकार करना है। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। This subject I have been teaching you for the last 3-4 years continuously. ये विषय मैं पिछले 3-4 साल बराबर आपको सिखाता आया हूँ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। So I am not going to teach much about it again. और इसलिए मैं वो विषय को आगे और सिखाने नहीं जा रहा। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। If you are a child of God, you must overcome yourself. अगर आप प्रभु के परमेश्वर के संतान हैं तो आपको अपनी खुदी के ऊपर जय पाना है। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।
I already told you to see the chart here. मैंने आपको पहले ही बताया है, उधर साइड बगल में एक चार्ट लगाया हुआ है। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। I believe all of you are visiting that chart. मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग आए सबने जाकर वो चित्र को देखा है। और मैं विश्वास करदा जिन्ने भी लोग आए ਹਨ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। There is also Mr. Self. उधर स्वयं या खुद ही बोलकर श्रीमान भी है। और उधर खुद ही बोल के श्रीमान भी है। So you must overcome yourself. आपको अपनी खुद ही पर जय पाना है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ खुद ही ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। Quickly I'll read one or two words and go forward. मैं जल्दी से एक दो वचन पढ़ूंगा आपके लिए और आगे बढ़ूंगा। और मैं जल्दी एक दो वचन पढ़ांगा फिर आगे बढ़ांगा। Philippians chapter 2 verse 4. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 4 वचन। और फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत। Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करें। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ। So this verse is self-explanatory. I'm not going to explain it more. ये वचन अपने आप को विवरण देता है, इसलिए मेरे को इसका विवरण देने की आवश्यकता नहीं। ਇਹ वचन ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। Some people, self is very difficult to be removed. कई व्यक्तियों के अंदर उनकी खुदी को निकालना बहुत मुश्किल काम है। और कई व्यक्तियों के अंदर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुदी ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। I have seen practically the lives of several people. The self is so strict, stick to it. To them, it's looks to be impossible to remove it. मैंने कई व्यक्तियों के जीवनों को देखा है, उनका खुदी इतना ढीठ है कि उनके अंदर से खुदी निकलना असंभव जैसा लगता है। और मैं कई मनुष्यों ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, कई व्यक्तियों ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ है कि जिन्हां ਦੇ अंदर खुदी इतनी ढीठ है जो ਕੱਢਣੀ बड़ी ही औखी लगती है। This self will take you to hell. और ये खुदी ही आपको नरक की ओर घसीट कर ले जाएगा। ये खुदी ही तानु नरक दे विच घसीट के ले जाएगी। Jesus Christ very plainly said, unless you deny yourself, you cannot be my disciple. प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा, जब तक आप अपने खुदी को त्यागते नहीं हैं तब तक आप मेरे चेले नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा साफ तरीके नाल आख्या, जिन्नी देर तक तुसी अपनी खुदी नु त्यागदे नहीं उन्नी देर तक मेरे चेले नहीं बन सकते। You may be a good man. आप एक अच्छे व्यक्ति होंगे, तुसी एक चंगे व्यक्ति होवोगे। You may not be a drunkard. आप शायद नशा नहीं करते हैं, हो सकता तुसी नशा नहीं खांदे होवोगे। You may not be an adulterer. शायद आप व्यभिचारी नहीं होंगे, शायद तुसी व्यभिचारी नहीं होवोगे। You may not be loving money. शायद आपको धन दौलत से प्यार नहीं है, शायद तानु धन दौलत नाल प्यार नहीं है। But yet if you love yourself more, that is self. लेकिन यदि आप अपने आप से ज्यादा प्यार करते हैं तो वही खुदी है। और जेकर तुसी अपने आप नु ज्यादा प्यार करदे हो वही खुदी है। The people who are with self, they will have self pity. जो व्यक्ति खुदी से भरे रहते हैं उनको अपने ऊपर ही दया आती है। और जो लोग खुदी दे नाल भरे रहंदे हन उन्हां नु अपने आप उत्ते ही तरस आउंदा है। They will start crying for themselves. वो अपने लिए ही कई बार रोने लगते हैं। वो अपने लिए कई बार रोंदे रहंदे हैं। When they cry for some time, they are satisfied. और थोड़ी देर अपने लिए रोने के बाद उन्हें बड़ी तसल्ली आ जाती है। और थोड़ी देर अपने लिए रोन तो बाद उन्हां नु बड़ी तसल्ली आ जाती है। There are so many items for which we should cry before the Lord. हमें परमेश्वर के सामने कितने और विषयों के लिए प्रार्थना करना है, आंसू बहाना है। असी परमेश्वर के सामने और किन्ने विषयों के लिए प्रार्थना करनी, अंजू बहाने हन। We have to cry for the perishing soul. हमें नाश होने वाली आत्माओं के लिए आंसू बहाना है। असी नाश होने वाली आत्माओं के लिए अंजू बहाने हन। But the people who are with self will cry for themselves because they love themselves more. लेकिन जो लोग खुदी से भरे हुए हैं वो अपने लिए ही आंसू बहाते हैं क्योंकि उनको अपने ऊपर ही तरस आती है। पर जो लोग खुदी दे नाल भरे हुंदे हन वो अपने लिए ही अंजू बहाउंदे हन क्योंकि उन्हां नु अपने आप उत्ते तरस आउंदा है। How can you escape from this self? आप ऐसी परिस्थिति में अपनी इस खुदी से कैसे बच सकते हैं? तुसी किस तरह तुसी इस हालत विच किस तरह अपनी खुदी तो बच सकते हो? 2 Corinthians chapter 5 verse 15. दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 15वां वचन। और दूसरा कुरिन्थिया उसका 5 अध्याय उसकी 15 आयत। And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। और अते ओ सबना दे लई मोया पई जेड़े जिउंदे हन ओ अगाहां नु अपने लिए नहीं सगो ओदे लई जिउण जेड़ा ओनां दे लई मोया ते फिर जी उठिया। So if you believe Jesus Christ died for your sins, यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आपके पापों के लिए मरा,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਿਆ, then you should not live for yourself. फिर आपको अपने लिए नहीं जीना चाहिए। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। But if you start thinking about yourself, when Jesus Christ died for us, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरे, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ, we should not live for ourselves. अब हमें अपने लिए नहीं जीना है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। If you in Jammu, in my small bedroom, Jammu, there's a small board written. जम्मू में जहां मैं रहता हूं, उधर मेरे कमरे में एक छोटे से पट्टिए के ऊपर एक विषय लिखा हुआ है। और जम्मू जिस जगह ते मैं रहना हां, उस जगह ते मैं एक पट्टी दे उत्ते एक छोटा जिहा लिख के रखा होया है। In my bedroom. मेरे सोने के कमरे में मैंने लिख कर रखा। मैं अपने सौण दे कमरे विच लिख के लाया होया है। In that it is written, that's a day A.M. Samuel died. उस पट्टिया में मैंने लिख कर रखा है कि एक दिन था जिस दिन A.M. सैमुअल मर गया। और उस पट्टी दे उत्ते मैं लिख के लाया होया है कि एक दिन सी जिस दिन A.M. सैमुअल मर गया। A.M. Samuel died for his opinions. A.M. सैमुअल अपने विचारों के लिए मर गया। A.M. सैमुअल अपने ख्यालां दे लई मर गया। A.M. Samuel died for his taste. A.M. सैमुअल अपने स्वाद के लिए मर गया। A.M. सैमुअल अपने स्वाद दे लई मर गया। A.M. Samuel died for his personal opinions. A.M. सैमुअल अपने व्यक्तिगत विचारों के लिए मर गया। A.M. सैमुअल अपने निजी जीवन दे विचारां दे लई मर गया। A.M. Samuel died for the appreciation from people. A.M. सैमुअल दूसरों के प्रशंसा के लिए मर गया। A.M. सैमुअल दूसरों की तारीफ वास्ते मर गया। I written several things like that. ऐसे मैंने उस पट्टी में अलग अलग विषय लिख कर रखे हैं। मैं इस तरह उस तख्ती दे अलग अलग विषय लिख के रखे हुए हैं। Why I keep it in front of me? मैंने उसको अपने सोने वाले कमरे में मेरे सामने हमेशा क्यों रखा है? मैं उसने अपने सौण वाले कमरे विच हमेशा अपने आगे क्यों रखा है? Only Christ lives in me. क्यों मैं हमेशा याद रखूं मसीह केवल मेरे में जीवित रहता है। और मैं इस गल नूं याद रखा कि मसीह ही केवल मेरे विच जिंदा रहंदा है। No preference for A.M. Samuel's opinion. अब A.M. सैमुअल के विचारों के लिए कोई पहला स्थान नहीं। और A.M. सैमुअल दे ख्यालां दे लिए कोई पहली जगह नहीं। No preference for A.M. Samuel personal welfare. अब A.M. सैमुअल का व्यक्तिगत भलाई के लिए कोई स्थान नहीं। और A.M. सैमुअल दे निजी जीवन दी भलाई वास्ते कोई जगह नहीं। No opportunity for the opinions of A.M. Samuel. अब A.M. सैमुअल के विचारों के लिए कोई स्थान नहीं। और A.M. सैमुअल दे ख्यालां वास्ते कोई स्थान नहीं। So only Christ lives in me. सो केवल मसीह ही मुझ में है। केवल मसीह ही मेरे विच है। So whenever my personal interest come, और जब कभी मेरा व्यक्तिगत विचार भलाइयों की बात आती है, जब कदे मेरे निजी जीवन का कोई विचार भलाई दी गल आउंदी है, I look on that board. और मैं उस पट्टिए की ओर देखता हूँ। मैं उस पट्टी दे वाल वेखदा हां। You have died for yourself. और मैं कहता हूँ तू तो अपने लिए मर गया है। मैं कहना तू तो अपने लिए मर गया है। So what Paul says, पौलुस क्या कहता है? पौलुस की कहता है? Galatians 2:20. गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20वां वचन। और गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 20 I am crucified with Christ, nevertheless I live, not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं मसीह दे नाल सलीब दिता गया हाँ, पर हुण तो मैं तो नहीं जिउंदा, सगों मसीह मेरे विच जिउंदा है। अते हुण जिहड़ा जीवन शरीर विच भोगदा हां, सो परमेश्वर दे पुत्र ते नेचा नाल भोगदा हां, जिन्ने मेरे नाल प्रेम कीता अते अपने आप नूं मेरे लिए दे दिता। 1 Corinthians 6:19 and 20 we read like this. पहला कुरिन्थी 6 का 19 और 20 में हम ऐसे पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियां 6 दी 19 ते 20 आयत विच ਅਸੀਂ इंज पढ़दे हां। You are bought with a price. आपको कीमत देकर खरीदा गया है। तानू ता मुल दे के खरीदा गया है। Therefore serve God with your body. इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की सेवा करें। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की सेवा करो। If you live in yourself, यदि आप अपने लिए जियोगे तो, if you live in yourself, यदि आपका खुद ही आप में जीता है तो, जेकर हुण तक ताडे विच खुद ही जिउंदी है तां
Christ cannot live in you. मसीह आपके अंदर जी नहीं सकता। ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। You decide either Christ should live in you or you should live in you. अब आपने फैसला करना है, या तो मसीह मेरे में जिएगा या तो मेरी खुद ही मेरे अंदर जिएगी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇਗੀ। Not 50% Christ and not 50% you. ऐसा नहीं कि 50% मसीह और 50% मेरी खुदी। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 50% ਮੇਰੀ ਖੁਦੀ ਤੇ 50% ਮਸੀਹ। You have to decide who should live in you. अब आपने फैसला करना है आपके अंदर रहना किसने है। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। Christ should live in you or you live in you. या तो मसीह मेरे में जिएगा या तो मेरी खुदी मेरे में जिएगी। आप. ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਜੀਵਾਂਗਾ। What Paul says. पौलुस क्या कहता है? ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? He died for us. वो हमारे लिए मर गया, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ, So I should live for him. इसलिए अब मुझे उसके लिए जीना है। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ। Christ should live in me. अब मसीह यीशु ने मुझ में जीना है। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। Again Galatians 2:20 we read. गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20वां वचन दोबारा पढ़ते हैं। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 20 ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਤੇ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। I pray to Jesus Christ like this. मैं प्रभु यीशु मसीह से ऐसे प्रार्थना करता हूँ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Lord Jesus, my eyes are your eyes. प्रभु यीशु मेरी आंखें अब तेरी आंखें हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। You see through my eyes. अब तू मेरी आंखों के द्वारा दुनिया को देख। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ। Jesus, my tongue is your tongue. प्रभु यीशु मेरी जबान अब तेरी जबान है। प्रभु यीशु मसीह मेरी जुबान तेरी जुबान है। You speak to the world through my tongue. अब मेरी जबान के द्वारा तू इस संसार से बात कर। ਹੁਣ ਮੇਰੀ जुबान ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। Jesus, my ears are your ears. प्रभु यीशु अब मेरी काने अब तेरे काने हैं। और प्रभु यीशु ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਹਨ। You hear the things of the people through these ears. प्रभु ये संसार की जो भी बातें हैं तू इन कानों से सुन। और प्रभु इस जगत ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ। Lord Jesus, my hands are your hands. प्रभु यीशु मेरे हाथ अब तेरे हाथ हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे हੱਥ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹਨ। You work through these hands. अब इन हाथों से तू काम कर। और ਹੁਣ तू ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ। Jesus, my legs are your legs. प्रभु यीशु मेरे पैर अब तेरे पैर हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे पैर तेरे पैर ਹਨ। You walk through the people. प्रभु through my leg. प्रभु मेरे पैरों को लेकर तू अपने लोगों के बीच में चल। और प्रभु मेरे पैरों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। Lord, my brain is your brain. प्रभु मेरा दिमाग अब तेरा दिमाग है। प्रभु मेरा दिमाग ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। You use this brain and think about the people. प्रभु मेरे दिमाग को इस्तेमाल करके तू अपने लोगों के बारे में चिंता कर। और प्रभु मेरे दिमाग ਨੂੰ इस्तेमाल कर दे, तू अपने लोगों की चिंता कर। Then I don't find anything to pray for myself. अब इतनी बातें प्रार्थना करने के बाद अब मैं अपने लिए प्रार्थना करने के लिए मेरे पास कोई विषय नहीं रहा। और ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। कोई विषय नहीं। कोई विषय नहीं है। समय नहीं है तो what? There is nothing for me to pray for myself. अब मेरे लिए खुद के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई विषय नहीं रहा। मेरे लिए खुद लिए प्रार्थना करने के लिए कोई विषय नहीं है। Jesus, see through my eyes. प्रभु यीशु मेरी आंखों के द्वारा तू देख। प्रभु यीशु मसीह मेरी आंखों के द्वारा तू देख। Jesus, hear through my ears. प्रभु यीशु मेरी कानों के द्वारा तू सुन। प्रभु यीशु मसीह मेरे कानों के द्वारा तू सुन। Jesus, speak through my tongue. प्रभु मेरी जबान के द्वारा तू बात कर। प्रभु मेरी जुबान के द्वारा तू गल कर। Jesus, work with my hands. प्रभु यीशु मेरी हाथों के द्वारा तू काम कर। प्रभु यीशु मसीह मेरे हाथों के द्वारा तू काम कर। Jesus, walk through my leg. प्रभु यीशु मेरे पैरों के द्वारा तू चल। प्रभु यीशु मसीह मेरे पैरों के द्वारा तू चल। Jesus, think through my brain. प्रभु यीशु मेरे दिमाग के द्वारा तू चिंता कर, विचार कर। प्रभु यीशु मसीह मेरे दिमाग के द्वारा तू चिंता कर, तू ख्याल कर।
When I say all these things, there is nothing left for me to pray for myself. जब इतनी बातें मैंने प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया और प्रार्थना करता हूं, तो मैं अपने लिए प्रार्थना करने के लिए मेरे पास कोई विषय नहीं रहा। जद इन्हीं गल्लां दे लई मैं प्रार्थना करके प्रभु दे हत्थ विच सौंप देना, तो मेरे लिए अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कोई विषय नहीं रह जाता। That's what Paul says. यही है प्रेरित पौलुस जो विषय कहता है। और एक ही रसूल पौलुस इस गल दे बारे कहंदा है, Christ live in us. मसीह यीशु हम में जिए। मसीह यीशु साडे विच जीवे। First century saints given themselves totally to Christ, therefore Christ was living in them. पहले शताब्दी के विश्वासियों ने अपने आप को, अपने शरीर को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए सौंप दिया था, इसलिए मसीह यीशु उनमें जीता था। और पहली सदी दे संतां ने, विश्वासियों ने अपने आप को पूरे शरीर को प्रभु दे लई सौंप दिता सी, इसलिए मसीह उन्हां दे विच जिउंदा सी। Therefore the world could see Christ. इसलिए उस समय की जगत मसीह यीशु को सामने देखती थी, और इसलिए उस समय दा जगत मसीह यीशु नु आमने सामने देखदा सी। Always you think whom people see through you. अब आपने हमेशा सोचना है दुनिया मुझ में किसको देखती है। और तुसी हमेशा सोचना है कि दुनिया मेरे विच किनु देखदा है। In my room there is a mirror. मेरे कमरे में मैंने एक आईना लगा कर रखा है। मैं अपने कमरे विच एक शीशा दर्पण ला के रखा है। And I look at that mirror and speak to myself several times. मैं कई बार उस आईने में अपने शक्ल को देखकर मैं अपने से कहता हूं, और मैं कई बार उस शीशे दे विच अपने रूप नु देख के कहना हां, Samuel, whom world is seeing through you? हे सामुएल, ये संसार तुझ में किसको देखता है? हे सामुएल, ये संसार तेरे विच किनु देखदा है? I again often ask this question. मैं कई बार ये सवाल अपने से पूछता हूं। मैं कई बार ये सवाल अपने आप तो पूछता हां। Is Samuel whom the people of the world see in you? हे सामुएल, हे सामुएल, इस संसार के लोग तेरे द्वारा किसको देखते हैं? हे सामुएल, इस संसार के लोग तेरे द्वारा किनु देखते हैं? Do they see Jesus or they see Samuel? क्या ये दुनिया के लोग तेरे द्वारा यीशु मसीह को देखते हैं या एम सामुएल को देखते हैं? कि इस दुनिया के लोग तेरे द्वारा यीशु मसीह को देखते हैं या तेनू देखते हैं? Do they see Jesus or A.M. Samuel? क्या वो यीशु मसीह को देखते हैं या वो एम सामुएल को तेरे द्वारा देखते हैं? और ओ की ओ यीशु मसीह नु तेरे द्वारा देखते हैं या एम सामुएल नु तेरे विच देखते हैं? I often take this issue before God. और ये विषय मैं कई बार परमेश्वर के सामने लेकर जाता हूं। ये विषय मैं कई बार परमेश्वर के सामने लेके जाता हूं। Lord, through this incident, whom the world has seen. प्रभु, इस घटना के द्वारा इस संसार के लोगों ने मेरे द्वारा किसको देखा? और प्रभु, इस घटना के द्वारा इस संसार के लोगों ने मेरे द्वारा किन्नु देखा? If I find that they have seen me, then I confess before the Lord and cry. अगर मुझे मालूम चलता है कि संसार ने उस घटना के द्वारा मुझे देखा है, तो मैं परमेश्वर के सामने गलती को मानता हूं। और जब मैंने पता लगता है कि इस घटना के द्वारा संसार ने मैनू देखा, तो मैं परमेश्वर के आगे उस गलती को मानता हूं। Then I say, Lord, the body which I given to you, I have taken for myself, forgive me. मैं प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, जो शरीर मैंने तेरे हाथ में सौंप दिया था, इस घटना के समय मैंने उसको अपने हाथ में वापस ले लिया था, तू मुझे कृपया करके क्षमा कर। और मैं प्रभु दे के प्रार्थना करता कि प्रभु, जो शरीर मैं तेरे आगे अर्पण किया सी, इस घटना के द्वारा उसनु मैं तेरे को ले लिया, इसलिए प्रभु मैनू माफ कर। When I discipline people, when I shout at people, again I come into my room and ask this question to myself. कई बार मेरे को लोगों को डांटना पड़ता है, ताड़ना देनी पड़ती है, तो डांटने के बाद मैं अपने कमरे में आकर अपने आप से प्रभु के सामने मैं ये विषय पूछता हूं। और कई बार मैनू लोगों को डांटना पैंदा, झिड़कना पैंदा, ताड़ना देनी पैंदी है, फिर मैं अपने कमरे विच आके उस विषय के बारे प्रभु को पूछता हां। Then I ask Jesus like this. मैं प्रभु यीशु मसीह से पूछता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह को पूछता हां। When I rebuking the people, are they seeing my anger or you? हे प्रभु, मैं जब दूसरों को डांटता हूं या ताड़ना देता हूं, तब लोग क्या मुझे देखते हैं या तेरे को देखते हैं? हे प्रभु, जब मैं लोगों को झिड़कदा हां, डांटदा हां, उस समय लोग मैनू देखदे हैं या तेनू देखदे हैं? Are they seeing my anger or you?
क्या वो मेरे गुस्से को देख रहे हैं या तेरे को देखते हैं? और की ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ? If I find that they are seeing my anger, then I confess before the Lord. अगर मुझे मालूम चलता है कि उन लोगों ने उस घटना के द्वारा मेरे गुस्से को देखा है तो मैं परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मानता हूं। और जब ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। Then sometime I ask forgiveness from the people whom I rebuked. और कई बार जिन लोगों को मैंने डांटा है उनसे मैं गलती मानता हूं, माफी मांगता हूं। और कई बार जिन्हां लोਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝਿੜਕਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। Why? क्यों? This body has been purchased by Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर इस शरीर को खरीद लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मोल दे के शरीर को खरीद लिया है। He had to pay a heavy price. इसकी शरीर को खरीदने के लिए एक भारी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ी। इस शरीर को खरीदने वास्ते उसको वड्डी रकम देनी पई। His hands were nailed. उनके दोनों हाथों पे कील ठोका गया था। उसके दोनों हाथों में कील ठोके गए सन। His face was full of spit. उनका मुंह पूरा थूक से भरा था। उसका मुंह पूरा थूका नाल भरिया सी। His head was planted with thorns. उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया था। उसके सिर ते कंडियां दा ताज रखा गया सी। His back was whipped with Roman whips. उनका पीठ रोमी कोड़े से फाड़ दिया था। उसकी पेट रोमी कोड़े दे नाल पाड़ी गई सी। He was hanged on 3 nails. 3 किलो पर ठोक कर क्रूस पर टांगा गया था। 3 किलो ते ठोक के उसनु सलीब ते टंगिया गया सी। My body was under the custody of Satan. मेरा शरीर शैतान की गुलामी में था। मेरा शरीर शैतान दी गुलामी विच सी। He was putting all his desires in me. शैतान अपनी सारी इच्छाएं और अभिलाषाएं मेरे शरीर में कूट-कूट कर भर रहा था। शैतान अपने सारे विषय कामनावां इच्छावां मेरे अंदर कोट-कोट के भरदा सी। Satan was putting all the filth in me. शैतान अपना सारा गंद मेरे अंदर भर रहा था। शैतान अपना पूरा गंद मेरे अंदर भर रहा सी। But when I looked on the cross, लेकिन जिस क्षण मैंने क्रूस की ओर अपनी आंखें उठाई और जिस वक्त मैं सलीब दी हालत वाला अपनी नजर उठाई, and I cried, Lord, save me. और मैंने जब पुकारा है प्रभु तू मुझे बचा ले, जब मैं पुकारा प्रभु मैंने बचा ला, Then he delivered me. तब उसी क्षण उसने मुझे छुड़ा दिया। उसने उससे पल मैंने छुड़ा लिया। What Satan was doing? शैतान क्या कर रहा था? शैतान की कर रहा सी? Putting all desire in me. मेरे अंदर अपनी सारी अभिलाषाएं विचारों से भर रहा था। और मेरे अंदर अपनी सारी लालसावां विचार भर रहा सी। I was enjoying the pleasures of the world. मैं संसार का ऐश और आराम का मजा ले रहा था। मैं संसार दा ऐश और आराम दा मजा ले रहा सी। Slowly slipping into lake of fire. और धीरे धीरे मैं आग की बड़ी झील की ओर खिसक रहा था। और मैं आस्ते आस्ते आग दी झील दे वाल जड़ा हो जा रहा सी। Enjoying the pleasures of the world, lust of the world, I was slipping into the lake of fire. संसार का ऐश और आराम का अभिलाषाओं का मजा लेते हुए आग की उस बड़ी झील की ओर मैं खिसकता जा रहा था। और संसार दी ऐश प्रस्ती दी मौज मस्ती कर दे आग दी झील दे वाल मैं फिसलता जा रहा But सी। when I looked on the cross and cried, लेकिन जब मैंने क्रूस की ओर दृष्टि करके चिल्लाया, पर जदों मैं सलीब दे वाल नजर करके चलाया, Jesus bought me. प्रभु यीशु ने दाम देकर मुझे खरीद लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मोल दे के मैंने खरीद लिया। Now this body belongs to him. अब ये शरीर का मालिक वो है। हुन इस शरीर दा मालिक वो है। He has the right to use this body. उसको ये शरीर इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। उसने इस शरीर नु वर्तन दा पूरा अधिकार है। He should see through this eye. उसने इन आंखों के द्वारा जगत को देखना है। उसने इन आँखों के द्वारा जगत नु देखना है। He should hear through this ear. अब उसने इन कानों के द्वारा संसार की आवाजें सुननी है। और इन कानों के द्वारा उसने संसार की आवाज सुननी है। He should speak through these lips. अब उसने इस जबान के द्वारा संसार से बात करना है। और उसने इस जबान के द्वारा संसार में गल्ला करनी है। He should work with his hands. अब इन हाथों के द्वारा उसने काम करना है। और इन हाथों के द्वारा उसने काम करना है। He should walk with his legs. अब इन पैरों के द्वारा उसने इस संसार में चलना है। और इस पैरों के द्वारा उसने संसार में चलना है। Kneel down and pray. घुटना टेके और प्रार्थना करें। गोटे टेक के आप प्रार्थना करें। Give your body to the Lord. अपने शरीर को संपूर्ण रीति से अपने प्रभु के हाथ में सौंप दें। अपने शरीर नु पूरी रीति दे नाल अपने प्रभु दे हाथ विच दे दईए। Give your body completely to the Lord. अपने शरीर को संपूर्ण रीति से उसके प्रभु के हाथ में सौंप दें। और अपने शरीर नु पूरी रीति दे नाल अपने प्रभु दे हाथ विच दे दईए। Let Christ live in you. मसीह को आपके अंदर जीने दें। मसीह नु अपने अंदर जीण दियो।
Remember, we have got very little time to show Christ through us. प्यारे अजीजों, याद रखें, हमारे सामने इस संसार को मसीह दिखाने के लिए समय बहुत कम है। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਸੀਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। From this convention, when you go back to your places, go with this dedication. Lord, let Christ be seen through me always. जब आप इस कन्वेंशन के बाद अपने स्थानों में जाते हैं, इस समर्पण के साथ जाएं, प्रभु जब मैं वापस जाऊंगा, मेरा इलाका मेरे द्वारा मसीह यीशु को देखेगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਸ ਅਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। Let mother-in-law see in me Christ. प्रभु मेरी सास मेरे अंदर मसीह यीशु को देखे। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ। Daughter-in-law may see Jesus in me. मेरी बहू मेरे अंदर मसीह यीशु को देखें। ਮੇਰੀ ਨੌ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ। The enemies, the neighbors who are living around me and working as an enemy, let them see Christ in me. मेरे पड़ोसी जो मेरे चारों तरफ मेरे दुश्मन की तरह रहते हैं, वो मेरे अंदर मसीह यीशु को देखें। ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ। People who are raising allegation against me and cursing me, help them to see Christ in me. प्रभु जो लोग मेरे विरोध में आरोप उठाते हैं, जो मुझे श्राप देते हैं, ललकारते हैं, वो मेरे अंदर मसीह यीशु को देखें। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। Lord, through sickness, let people see Christ in me. प्रभु बीमारी के समय, बीमारी के द्वारा लोग मेरे अंदर मसीह यीशु को देखें। ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। Lord, when I go through hunger due to lack of money, let them see Christ in me. प्रभु पैसे की कमी के कारण मैं जब भूखापन से जाता हूँ, ऐसी परिस्थिति में लोग मेरे अंदर मसीह यीशु को देखें। ਪ੍ਰਭੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। Lord, I lived for the desires of my body for long enough. प्रभु मैंने अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए बहुत समय बर्बाद किया है। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। Now, Lord, every moment, every second, for your desire to be fulfilled. प्रभु मेरी जिंदगी के बाकी बचे क्षणों में तेरी इच्छा को मेरे शरीर के द्वारा पूरा करने के लिए मैं अपने आप को सौंपता हूँ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਲ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। So, the other component of the yoke is denying self. सो जुए का अगला पुर्जा है अपने स्वयं को, अपने खुद ही को त्यागना है। ਜੂਏ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੁਰਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ।